guys, welcome back to my channel. So yeah, in this video I'm gonna tell you I scored 99 in my maths in class 12 board. So yeah, let's get begin. So yeah guys, in my 11th standard I just scored 78 percentage. But yeah, in 12th I topped my school. Uh, so if you want to know my percentage, our next video is coming to reveal that. But yeah, in maths I got 99. So there is, like, I have make a list, like many of you were asking that how you do that, or many people ask. But let me tell you that I was not so topper from shuru se hi. I was just average student, but um, like yeah, in this video I'm gonna tell you that how I score good, even though I don't had that much good score in my class 11. So yeah, so the first point is I would suggest you, or I would tell you, or I would advise you that never stick to so much resources. You will be just gonna confuse. तो starting में I used to solve like three references, जिनमें से first was RB Tripathi, Sivlal और Nabbodh. These three references I used to solve, and guys, you won't believe I was just end up just messing up things. Even though I was doing a lot time, like giving a lot time in this particular subject, maths, but I was not scoring well in my test. Mm, Also, I was not able to like make PYQs, or yeah. So my first advice is that stick to one book, not like only stick to one, but no, don't be get confused with so many, because in the market there are so many resources that you are gonna confuse. So I used to solve first. I used with like any references, like which is easy, like RB Tripathi के मैं example solve करती थी. Then I slowly jump into NCRT. And guys, you believe or not, I just, my main thing was NCRT whole the year. With that I scored 99. ऐसा नहीं है कि NCRT से ही उठ के सवाल आ जाते हैं, बट उसी के लेवल के आपको क्वेश्चन आते हैं और फिर आपसे PYQ भी बनते हैं. तो फर्स्ट आई यूज टू सॉल्व simple examples of RB Tripathi. Then I used to solve examples and all exercise questions of NCRT. Then I used to solve PYQs. और गाइस मेरे से बन रहे होते थे, लाइक 95% ऑफ द PYQ मेरे से बन रहे होते थे, और कुछ कुछ जो नहीं बन रहे होते थे. देवर मेनली लाइक टाइप्स ऑफ RB त्रिपाठी के जो लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, और जो बाकी दो तीन रेफरेंस देखे होंगे आपने, जो उनके एक्सरसाइज के लास्ट लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, लाइक शिवलाल और नब्बोध, उस टाइप के. और वैसे टफ क्वेश्चन थे. तो या, बट इफ़ यू लाइक कैच दी पैटर्न, आप वही PYQ एक दो बार कर लोगे, फिर आपसे वैसे सेम क्वेश्चन बनने लगेंगे. सो या, next point is like never compare yourself, which is like you you kinda thinking that I'm giving some kind of motivation, but not. I, like many people in my class were preparing for competitive exams like JEE. So even though a chapter was starting and the teacher was telling something, only one question, they were like capable of doing. They were able to do the whole exercise solve, but I can't write a single word. So I used to compare myself and cry a lot that if they can, why can I? Listen guys, their path is different, and they are doing, उनका वो चैप्टर पहले से हो रखा है तो उनसे बन रहा है. बट प्लीज़ डू नॉट कंपेयर. बात आप आपके पे फोकस करो, आप डिमोटिवेट फील मत करो किसी के से भी. धीरे धीरे जब मैंने कोशिश की, दो तीन बुक्स NCRT 4-5 बार लगाई है मैंने टोटल ऑफ, तो मुझे भी फिर क्वेश्चन हो रहे थे. PYQ मैंने सारे ही लगाए हैं. और या, the next point is make short notes and formula sheets. So guys, you don't have just only math subject which you have to like practice or memorize. Once I completed the practice of the chapter and like solving the questions,
I used to make a formula sheet of main formula that are given in NCERT, or like you can search it on Google, that like if we say probability or formula for class 12 boards, you can go to a formula sheet, you can print it, or I would say you should write it up, make a separate notebook for it and write it, that make you memorize it quickly. And one thing that I used to do unique, if I am solving a question and I made a mistake, that this mistake, like a silly mistake or anything, I forget formula, तो मैं यहाँ पे उसको सर्कल करके स्टार्ट करके हिंदी में रख देती थी डैट फार्मूला गलत है, या ये पहले भी मिस्टेक करी है, लाइक आप समझ सकते हो। जैसे कभी फार्मूला भूल जाती थी, फार्मूला रॉन्ग लगा दिया, या कंसेप्ट पता नहीं है, या यहाँ पे लिख दिया कंसेप्ट ही पता नहीं है, या फिर अपन ने गलत अप्रोच लगा दिया, वो लिख देती थी ऐसे। तो व्हेन आई यूज टू रिवाइज, लाइक आई हैड अ सेपरेट नोटबुक ऑफ सॉल्विंग ऑल दी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। सो व्हेन आई यूज टू लाइक रिवाइज, तो आई कैन सी दी मिस्टेक्स दैट आर हाईलाइटेड, एंड इफ़ यू वांट टू लाइक, आप उसके लिए एक सेपरेट से कॉपी बना सकते हो, और आप मिस्टेक की लिस्ट बना सकते हो इफ़ यू वांट, लाइक इन ईदर वे यू आर कंफर्टेबल। then next point is, like everyone is gonna tell you this point, which is solve as much as PYQ you can. Guys, PYQs are like the main source of scoring, that I would say many people say like they are overrated, but guys, like of 4 or 6 marks MCQ I got straight from PYQ in my exam, and I'm like sure you are gonna also get these, like एटलीस्ट एक दो तो आप देखने ही वाले हो PYQ में से। तो गाइस आप PYQ सॉल्व करो, और एक ये भी उसका सॉल्व करने का वो है कि आपको उसका वो सीक्वेंस पता चल जाता है, लाइक फॉर्मेट पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और कितने डिफ़िकल्टी के होते हैं, लाइक मार्किंग आपको पता चल जाती है कि लाइक यू अंडरस्टैंड कि लाइक इस चैप्टर से कैसे पूछे गए थे, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तो एक उसकी सेपरेट नोटबुक बना ली थी, लाइक लेट्स से दिस इज़ this is a notebook. I made it in parts, and like it is 2023, and I wrote the chapter name and then subtopic, then write which question, how much question is from, like integration, if let's assume at the like number how much question is asked, and for each year till the my exam year. सो द लास्ट टिप विच इज़ सो अंडररेटेड, एंड गाइस मैं तो अज्यूम करूँगी कि आप में से कोई ना कोई ये कर ही रहा होगा, मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स थे उन्होंने ये मिस्टेक करी है, और फिर वो बाद में पछताए भी बहुत हैं। गाइस आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने फार्मूला शीट बना ली, आपको सब याद भी है, बट यू डोंट नो हाउ टू लाइक राइट होल द पेपर इन 3 hours, और यू डोंट नो हाउ टू फॉर्मेट इट, और आपको नहीं पता है कि 3 घंटे में आप कैसे करोगे। गाइस प्लीज़ नेवर 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 एवर स्किप योर स्कूल एग्ज़ाम। लाइक इफ़ आई से अबाउट माई स्कूल, इन माई स्कूल देयर वर 2 unit tests, 1 quarterly exam, 1 half yearly exam, 1 pre-board. So I never skip like these exams. इससे क्या मेरे को बेनिफिट ये मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज फिनिश्ड इन माई बोर्ड, आई नेवर गेट लाइक इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि टाइम कम पड़ रहा है या कुछ, बिकॉज मैंने इतने सारे एग्ज़ाम पहले से दे रखे थे कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट आ गया था। एंड यू नो हाउ टू लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो अपन को अभी छोटी लगती है, बट ये एग्ज़ाम वाले दिन अपन को उसकी वजह से ही फिर बहुत मुश्किल होती है, जैसे टाइडिंग दी थ्रेड। तो इन माई स्कूल वी यूज्ड टू टाइट दी थ्रेड, उसमें भी आपको लग जाता है टाइम, जब आपको बहुत ज़्यादा लाइक घबराहट हो रही होती तब आपसे वो थ्रेड भी टाइट नहीं होता। एंड वेयर टू राइट, वेयर टू हाईलाइट थिंग्स, लाइक आंसर में आपको कहाँ पे, कहीं कहीं आंसर ही नहीं, कहीं कहीं आंसर में अगर आप, मैंने क्या करा था उसके लिए, अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगी डेट हाउ आई फॉर्मेट और राइट माई एग्ज़ाम। तो जैसे कुछ कुछ आंसर थे उन्हें मैंने डब्बे में डाल दिया, तो जो एग्जामिनर को आपकी कॉपी जितनी लाइक स्मूथली चेक कर पाएगा उतने आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे। सो यार नेवर स्किप, लाइक इवन इट इज़ अ सिंपल टेस्ट टू सेल्फ स्टडी लाइक मी,
तो उनका ये कहना था कि उनके मार्क्स कम आएंगे, लाइक उनका ये चैप्टर नहीं हुआ। गाइस गिव दी एग्ज़ाम, you guys won't believe, but in like many unit test, not unit test but in classroom test, I even got 0 mark because टीचर ने वो चैप्टर करा दिया होता था और मेरा वो हुआ नहीं होता था। बट आई नेवर स्किप एनी टेस्ट और एनी एग्ज़ाम। फिर जब मैं खुद से कर रही होती थी तो आई वुड जस्ट वो टेस्ट पेपर मैं अच्छे से रखती थी, बट फिर जब मैं अच्छे से खुद से वो चैप्टर पढ़ रही होती थी तो आई विल सॉल्व द उस क्वेश्चन कि तब नहीं हो पाया तो तब। और इवन थो इफ़ योर हेल्थ इशू कोई भी वजह से अगर आपका वो रह गया है तो प्लीज़ बोरो करो अपने भी कोई भी क्लासमेट से एंड सॉल्व इट। और एक और चीज़ मैं करती थी, खुद से मैं पेपर फॉर्मेट करती थी। जैसे PYQ का किसी दिन पूरे MCQ उठा के मैंने एक पूरे पेपर पे लिख के 3 आवर का टाइम में लगा के खुद सॉल्व करती थी। और जब मेरे एग्ज़ाम क्लोज आने लगा था उसके 1-2 महीने पहले आई यूज़ टू लाइक सिट एंड गिव प्रॉपर मॉक, जो PYQ ही होते थे उन्हीं का पूरा उठा उठा के। वो कुछ कुछ डिलीटेड भी जो रहते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हो। बट या लाइक मैथ्स में तो आपको टाइम मैनेजमेंट और ये करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डोंट स्किप लाइक एनीथिंग। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आपको और भी कुछ पूछना है या आपको वीडियो चाहिए हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट, या फिर जो मेरे फार्मूला शीट हैं अगर आपको वो चाहिए तो आई विल गिव दैट इन डिस्क्रिप्शन। और लाइक जैसे कि मैं आपको बताया PYQ सीक्वेंस कैसे करने हैं, अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज़ कमेंट।